Chemistry Champs. In this video we are learning structures of atoms and this is the unit second of class 11 and this is the lecture second of this chapter. So start with line spectrum of hydrogen. So when we pass an electric charge through a gaseous hydrogen molecule, so they will be dissociate and produce a energetically hydrogen atom and that emit discrete electromagnetic radiation. So जब हम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराते हैं तो ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है और हमको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है जो कि एनर्जेटिक होता है, जो कि हर तरह की रेडिएशंस को एमिट करता है. जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सेवरल जो लाइंस है वो कंसिस्ट करता है और इनका नाम इनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया गया है. सो देयर इज एन Johannes Rydberg, that is an Swedish spectroscopist, जिसने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको हम एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं. सो दैट इज म्यू बार इज इक्वल्स टू 109,677 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर inverse. So this is the expression from which we can find the series of lines in hydrogen atom. And in this n1 क्या होगा 1, 2, 3 and up to so on. And n2 क्या होगा n2 होगा n1 plus 1 और n1 plus 2, n1 plus 3 and up to so on. Now, one zero nine six seven seven. This is called RH. That is Rydberg constant, and there are series 1 to 6. If there is N1 1 to 6, so their name can be represented as there is name of series, there is N1, there is N2 and there is reason. Alright. So अगर यहाँ पे N1 है तो नेम ऑफ सीरीज क्या होगा लाइमन एंड यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा N2 is equals to N1 plus 1. So N1 1, so put here 1 plus 1 2, so 2 3 and up to so on. और ये कौन सा रीजन होगा अल्ट्रा वायलेट रीजन. नाउ अगर N1 की वैल्यू अगर 2 है तो ये कौन सी सीरीज होगी बाल्मर और यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 plus 1 that is 3, 4 up to so on. और इसमें रीजन कौन सा हो जाएगा विजिबल. नाउ अगर N1 की वैल्यू 3 है तो नेम ऑफ सीरीज क्या होगा पास्चन एंड N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 plus 1 that is 4, 5 and up to so on. So this is IR इंफ्रारेड रीजन. अगर हम n की वैल्यू 4 है तो यहां पे हो जाएगी ब्रैकेट सीरीज एंड देयर n2 इज 4 plus 1 5 6 and up to so on and there is reason also IR. Now if n1 is 5, so their series name is Fund and 5 plus 1 6 7 up to so on and there is also IR. Now if N1 is 6, so this is called Humphrey
infrared region. Now we plot the transitions of these Lyman, Balmer or Paschen series. So there n is equals to infinity and up to so on. There n is equals to 6. There n is equals to 5. N is equals to 4. N is equals to 3. N is equals to 2 and there n is equals to 1. So when the transition take place for n1, so this will be from n2 से n1 में आ सकता है. So सबसे पहले n2 से n1 में. So n3 से भी n1 में आ सकता है. n4 से भी आ सकता है. n5 से भी आ सकता है. n6 से भी आ सकता है. तो ये जो सीरीज होगी इसको हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज. ओके. अगर n2 के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रेडिएट होके आता है तो उसको हम कहेंगे पास्चन सीरीज, बाल्मर सीरीज. सॉरी. सो n3 में से n2 में आ सकता है, n4 में से आ सकता है n2 में, n5 से आ सकता है और n6 से आ सकता है. तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? बाल्मर. और जो ये रेडिएशन है इनके कौन से कलर होंगे? रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट. ऑलराइट. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स n3 के अंदर आते हैं तो n4 से आ सकता है n3 में, n5 से भी आ सकता है, n6 से भी आ सकता है. तो इसको हम क्या कहेंगे? पास्चन सीरीज. So these are the transitions of Lyman, Balmer and Paschen series. So there is one thing that is limiting line. So what is limiting line? So we found the value of that is nu bar is equals to 109,677 1 by n1 square minus 1 by n2 square. अगर हम यहाँ पे n2 की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लें, if for an hydrogen atom if their n2 will be infinite, so this will be called limiting line. Now we move on to the Bohr's atomic model. So to overcome the drawback of Rutherford model, that is nuclear atomic model, so there are some postulates which given by Niels Bohr, that is Danish physics 1930. सो नील्स बोहर जो कि एक डेनिश फिजिक्स था, उसने 1913 में एक एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट दिए थे, उसको हम बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल. सो अब इसके पोस्टुलेट क्या हैं? सो फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करते हैं. मीन्स टू से देयर इज अ न्यूक्लियस and electron will be surrounded in a circular path which has a constant radius or and constant energy. और
fixed radius or fixed energy. So there are many concentric circles or paths which are present around the nucleus, and these are called orbits, stationary states, or allowed energy states. And there n is equals to 1, 2, 3 up to so on, and these are given by K, L, M respectively. So there n is 1, so this shell is known as K shell. If there n is equals to 2, this is known as L. N is equals to 3, so this is known as M. Now the second postulate is the energy of an electron in the circular path or in an orbit is constant. Energy of electron is constant in orbit. तो अगर यहाँ पे हम अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है लोअर स्टेट में, यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो ट्रांजिशन हो गई हायर स्टेट में. अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हायर स्टेट में, तो उसने एनर्जी एमिट करी और वो आ गया लोअर स्टेट में. तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी है वो कुछ ही टाइम के लिए चेंज होगी, हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा. ठीक है. नाउ द थर्ड पोस्टुलेट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट is given by their difference. So nu is equals to delta E by h. So अब हमने यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से पढ़ा था E is equals to h nu. तो यहाँ से हम अगर nu निकाले तो क्या हो जाएगा E by h. तो यहाँ से हमने ले लिया E by h और यहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे डेल्टा. सो डेल्टा क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H. और E2 क्या है यहाँ पे ये जो E2 है वो है हायर एनर्जी स्टेट और E1 क्या है लोअर एनर्जी स्टेट. और इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. So this is the third postulate. Now we move on to the fourth postulate, that is the angular momentum of an electron is given by mvr is equals to n into h divided by 2 pi. So the angular momentum, that is mvr, this is given by integral multiple of h by 2 pi. If there are any electron present, so this will be also the integral multiple of h by 2 pi. So this is the postulate number 4 of Bohr's atomic model. Now we move on to the significance of Bohr's atomic. So first is stability of atoms. First significance is stability of atoms. So बोहर ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ, और जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, और इनकी जो रेडियस और एनर्जी होती है फिक्स होती है. सो इनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होने की वजह से
ये इलेक्ट्रॉन बाहर मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, एनर्जी रेडिएट नहीं होगी तो इसमें इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ द सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। सो अगर हम बात करें बोहर्स रेडियस निकालने के लिए, अगर nth एटम्स की बात करें तो यहाँ पे Rn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर m e स्क्वेयर z। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Rn फॉर nth orbital of nth atomic orbitals, radius of nth atomic orbital. So this can be find out from Rn is equals to n square h square divided by 4 pi square m e square z. So in this Rn is equals to h square divided by 4 pi square m e square. So h square is Planck constant, 4 is also constant, pi that is 3.14, it is also constant, m is the mass of electron that is constant, e is the charge of electron, so that is constant. So this will be whole constant and this can be denoted as a naught, and in this z is also equal to 1 because for hydrogen atom z is 1, so there z, so this whole term will be a naught and their remaining will be n square. When we solve this, so the value is 52.9 n square picometer, और ये जो a naught होगा वो होगा 52.9 पिकोमीटर। सो ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। अगर हमको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना है तो क्या होगा, तो हमको सिंपली ये करना है Rn इज इक्वल्स टू, दिस इज कांस्टेंट एंड इन दिस द वैल्यू ऑफ z इज 1, सो यहां से z हटा देंगे क्योंकि हमको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो a नोट हो गया, a नोट, एंड यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे z भी रिमेनिंग है क्योंकि यहाँ पे तो z1 था हाइड्रोजन के केस में, बट यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए चाहिए तो यहाँ पे z भी आएगा। तो Rn यहाँ से क्या हो जाएगा 52.9 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंड द वैल्यू ऑफ a नोट दैट इज 52.9। सो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ सोल्व करते हैं एग्जाम्पल्स। So now we solve this example. Which state of triple ionized beryllium has the same atomic orbit radius as the ground state of hydrogen atom? तो इसमें हमको क्या निकालना है कि जो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसकी जो रेडियस है वो कब बेरिलियम की 3 पॉजिटिव एटम की इक्वल होगी। तो अब हम रेडियस जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर z। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे n होगा 1 और z होगा 1। सो यहाँ से हम R1 इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर, n स्क्वेयर दैट इज 1 का स्क्वेयर, सो देर इज 1, so there is h square divided by 4 pi square m e square and z is 1. So this, okay, this is our first equation. And for hydrogen like atom, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Rn के लिए n square h square divided by 4 pi square m e square z. So this is our second equation. अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। सो R1 डिवाइडेड बाय Rn इज इक्वल्स टू h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर
divided by n square h square divided by 4 pi square m e square z। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, h square divided by 4 pi square m e square इंटू में ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 4 pi square m e square z divided by n square h square। तो यहां से h square कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, pi square कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, e square कैंसिल आउट। तो यहां पे बचा क्या है, z by n square, z by n square। तो अब हम यहां से लिख लेते हैं r1 by rn is equals to z by n square। ठीक है, तो अब हम इनका अगर रेशियो ले तो क्या होगा, r1 इज इक्वल्स टू rn। सो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 4। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो z क्या होगा, 4 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट, n की वैल्यू क्या हुई, 2। सो यहां से हमको क्या पता चलता है, जो सेकंड ऑर्बिट होगा बेरिलियम 3 आयनाइज्ड का, वो इक्वल होगा हाइड्रोजन एटम की रेडियस के इक्वल। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Now the third significance is calculation of energy of hydrogen atom. So according to Bohr postulate, he give a mathematical expression to calculate the energy of hydrogen atom. So in this he considered that electron is a negative charge particle which has mass m and which is moved in a circular orbit. So its energy is equals to En is equals to minus RH 1 divided by n square. And in this the value of n is 1, 2, 3 up to so on. RH is Rydberg constant and this is equals to 2 pi square m e4 h square, and when we solve this, so this will be equal to 2.18 into 10 to power minus 18 joule. So put the value of RH here. So En is equals to 2 pi square minus 2 pi square m e4 divided by h square, and there is 1 by n square. So this is 2.18 minus 2.18 into 10 to power minus 18 divided by n square, and this is joule. ठीक है, so this is the energy of hydrogen atom, and if there is the energy at the lowest orbit, so E1, so there n is equals to 1 for the lowest energy state. So the value is minus 2.18 into 10 to power minus 18 divided by 1 square. So this will be equal to minus 2.18 into 10 to power minus 18 joule. And for a hydrogen like atom, so this will be given by En is equals to minus 2.18 into 10 to power minus 18 divided by n square joule. Now if we convert this into kilojoule per mole, n is equals to minus 1311.8 divided by n square kilojoule per mole. Now En is equals to, so यहाँ पे 8 है, यहाँ पे अगर 6 से ज्यादा टर्म हो तो यहाँ पे 1 वैल्यू प्लस हो जाती है, सो
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये एनर्जी होगी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो यहाँ पे सक्सेसिव नंबर ऑफ, यहाँ पे हर n वैल्यू के लिए एनर्जी स्टेट्स होंगी, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होंगी, और अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के साथ यहाँ पे जो डिफरेंस है एनर्जी स्टेट्स के बीच का वो डिक्रीज होता जाएगा। लाइक सबसे ज्यादा होगा E2 माइनस E1 का, फिर डिफरेंस कम हो जाएगा दैट इज E3 माइनस E2 का, और फिर डिफरेंस और भी कम हो जाएगा दैट इज E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। नाउ if we write this for a hydrogen like molecule and this is for the nth orbital atom, for En is equals to, for hydrogen like atom this will be minus 2.18 into 10 to power minus 18, and there is Z divided by n square, because वहां पे हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, वहां पे Z की वैल्यू थी 1 और यहाँ पे है हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल, सो Z की वैल्यू अलग होएगी, तो यहाँ पे Z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अगर हमको इसको, ये जूल में था, अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1312। ठीक है, माइनस 1312 डिवाइडेड बाय Z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। सो ये एनर्जी होगी हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल के लिए। नाउ अब हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज अ वेव नंबर। तो हमको पहले फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है, फिर वेव नंबर का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी स्टेट्स हम कैसे लिखेंगे, EF माइनस EI दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा E। सो F क्या होगा, फाइनल ऑर्बिटल, एंड I इज द इनिशियल ऑर्बिटल। सो यहाँ पे एनर्जी हमने अभी पढ़ी क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल्स टू RH डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस RH डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर पुट कर दे तो क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू EF, सो RH डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ फाइनल के लिए लिया है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस RH डिवाइडेड बाय NI स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस RH NF, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा RH डिवाइडेड बाय NI स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, डेल्टा E क्या हो जाएगा, RH डिवाइडेड बाय NI स्क्वायर माइनस RH डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से अब हम RH जो है वो कॉमन ले लेते हैं, सो RH 1 डिवाइडेड बाय NI स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर। सो अब हम अगर यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, E इज इक्वल्स टू H न्यू होता है। ठीक है, सो न्यू क्या हो जाएगा, E बाय H, तो ये हमारा E है। ठीक है, सो न्यू इज इक्वल्स टू E बाय H, सो ये हमारा डेल्टा E बाय H, सो दैट इज इक्वल्स टू दिस RH 1 बाय NI स्क्वायर माइनस 1 बाय NF स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे H डिवाइड किया है तो यहाँ पे H आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी एज अ वेव नंबर निकालना है। सो वेव नंबर क्या होता है,
न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी. दिस इज द रिलेशन. सो ये हमने कहां से निकाला था, c इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू, ऐसा होता है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम c न्यू बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू c, ऐसे होता है. ठीक है, और 1 बाय लैम्डा होता है न्यू बार. सो यहाँ पे न्यू बाय न्यू बार इज इक्वल्स टू c. सो अगर हम यहाँ से न्यू बार की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, न्यू बार इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे चला गया न्यू बाय सी और सी इसके नीचे आ गया, तो न्यू बार की वैल्यू आ गई न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी. तो न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी. सो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो न्यू है उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो है आर एच डिवाइडेड बाय एच 1 बाय एन आई स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन एफ स्क्वेयर. ठीक है, और यहाँ पे c से डिवाइड किया है तो यहाँ पे c आ जाएगा और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी वेव नंबर की. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं. So now we solve this example. So what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from N5 to N2 state or in hydrogen atom? तो हमको यहाँ से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है. सो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E बाय एच. सो हमको सबसे पहले डेल्टा E निकालनी पड़ेगी. ठीक है, सो डेल्टा E is equals to RH 1 divided by NF square minus 1 divided by NI square. So यहाँ पे RH की वैल्यू क्या थी, माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल. ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय NF दैट इज 5 फाइनल एंड NI दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 एंड देर इज 25, देर इज 4 एंड टेकिंग एलसीएम माइनस 1.28 10 टू पावर माइनस 18, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 एंड 4 माइनस 25 एंड देयर माइनस 21 आ जाएगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 45.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 18. ये तो ऊपर बच जाएगा. जब हम इसको माइनस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और डिवाइडेड में 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर. तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 45.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 है, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस 18 माइनस 2. सो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस साइन में टर्म बड़ी है. सो माइनस 20. ठीक है, सो अब हम इसका एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस 4.578 10 टू पावर माइनस 19. क्योंकि हमने एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट किया है तो यहाँ से एक वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो हमारी वैल्यू होगी डेल्टा ई की. अब यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी निकाली तो फ्रीक्वेंसी होती है डेल्टा ई बाय एच. सो डेल्टा ई हमारी है माइनस 4.58 10 टू पावर माइनस 19 जूल एंड एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 किलो जूल. वैल्यू क्या आएगी 6.91 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज. तो ये हमारी न्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो अब हमने न्यू निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ लैम्डा. सो न्यू सी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू न्यू. तो यहां से अगर हम लैम्डा निकाले तो क्या होगा, न्यू बाय c.
c. So lambda is equals to nu by c. So nu की वैल्यू क्या है? nu की वैल्यू है ये 6.91 10 to power 14 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे पर सेकेंड, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी की जो पर सेकेंड भी होती है और हर्ट्ज भी होती है यूनिट, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा और 6.91 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 14 माइनस 8. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 0.434 10 टू पावर 6. ये हमारा बच जाएगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 डेसिमल राइट की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे. सो 434 इंटू 10 टू पावर, यहाँ से 3 पावर ऐड हो जाएगी, सो 9. ठीक है, सो ये क्या होगा 434 इंटू 10 टू पावर 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 434 नैनोमीटर, बिकॉज 10 टू पावर 9 इज इक्वल्स टू नैनोमीटर. Now we move on to the next example, that is calculate the wave number of longest wavelength transition in the Balmer series of the atomic hydrogen. तो अब हमको यहाँ से वेव नंबर निकालना है बाल्मर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का. तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या होगी, n जो होगा वो 2 होगा, n जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 से 2 ट्रांजिशन में आएगा, ये सबसे उसकी मिनिमम कंडीशन होगी. ठीक है, तो यहाँ से वेव नंबर क्या होता है, RH इंटू 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर. तो अब यहाँ पे हम RH की वैल्यू क्या है 109677 रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड 1 बाय n1 की वैल्यू है 2 एंड स्क्वेयर माइनस 1 बाय 3 स्क्वेयर. सो 109677 देयर इज 1 by 4 minus 1 by 9, 109677. So यहाँ से LCM ले लेंगे, so 28 and there is 9 minus 4, so 109677 into 5 divided by 28. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 19585.17 सेंटीमीटर इनवर्स. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी. तो अब हम इसको डेसिमल को अगर शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स, 1.95817 इंटू 10 टू पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि हमने लेफ्ट में शिफ्ट की है, सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये हमारी आ गई वेव नंबर की वैल्यू. अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो दैट इज नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड एट 211.6 picometer. So name of the series to which the transition belong and the region. So इसमें हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है और ये बताना है कि कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है और कौन से रीजन से बिलोंग करता है. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये रेडियस है R1 is equals to 1.3225 nanometer and second radius that is R2 is equals to 211.6 picometer. So ये जो रेडियस है वो नैनोमीटर में है और ये पिकोमीटर में, तो इसको हम पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो अगर 3 डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट कर देते तो पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी 1322.5 पिकोमीटर. और हमको पता है रेडियस इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय z पिकोमीटर. यहां से हम रेडियस निकालते हैं. तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, R1 इज इक्वल्स टू 52.9
n square, so 1 n1 square divided by z. R2 is equals to 52.9 n2 square divided by z. और इसमें R1 की वैल्यू हमारी क्या है? 1322.5 is equals to 52.9 n1 square divided by z. तो यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू पुट कर दी और R2 की वैल्यू है ये, तो पुट कर देंगे 211.6 is equals to 52.9 n2 square divided by z. तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा? सो 1322.5 divided by 211.6 is equals to 52.9 n1 square divided by z. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म नीचे रहेगी, ये वाली ऊपर चल जाएगी, तो z डिवाइडेड बाय 52.9 n2 स्क्वायर. सो 52.9 कैंसिल आउट, z इज कैंसिल आउट. सो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा? 1322.5 डिवाइडेड बाय 211.6 इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6.25 इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर. तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 का होल स्क्वायर n1 डिवाइडेड बाय n2 होल स्क्वायर. सो स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो n1 बाय n2 इज इक्वल्स टू 2.5. अगर हम इसको रेशियो की फॉर्म में देखें तो n1 2 हो जाएगा और n2 जो है वो 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रांजिशन कहां से होगी? 5 से 2 में. अगर 5 से 2 के अंदर हो रही है तो कौन सी सीरीज होती है? बाल्मर सीरीज. तो ये तो हमने बता दिया कि बाल्मर सीरीज से होती है. अब हमको निकालनी है वेवलेंथ. सो वेवलेंथ, सो हम न्यू बार निकाल लेते हैं. न्यू बार इज इक्वल्स टू 109,677 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है. तो अब इसके अंदर हम n1 और n2 की वैल्यू पुट आउट कर देंगे. 109,677 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.099 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1.09677 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1 by 4 minus 1 by 25. Now taking LCM, 1.09677 into 10 to power minus 7 divided by 100, and there is 25 and there is minus 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1.09677 into 10 to power minus 7 into 21 divided by 10 to the power 2. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.303 into 10 to the power minus 6. ठीक है, ये हमारी वैल्यू है न्यू बार, दैट इज वेव नंबर. और वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. तो ये यहां से अगर हम वेवलेंथ निकालें तो क्या होगा? वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 बाय न्यू बार. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले तो कितना आएगा? 1 बाय न्यू बार. सो इट इज इक्वल टू 0.434 इंटू 10 टू पावर 6 और 3 डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 434 और 10 टू पावर 9, सो नैनोमीटर आ जाएगा. सो नैनोमीटर. सो ये हमारी वेवलेंथ हो जाएगी. और ये कौन सा रीजन होगा? विजिबल रीजन. ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज
Next significance is explanation of hydrogen spectrum. So, a sample of hydrogen gas molecule, there are many atoms or molecules present, and they absorb different types of energy, and following, if they absorb energy, so they will move from lower energy state to the higher energy state, and which have different frequencies and different energy states. So these electrons provide some line of series because different electron provide different energy orbits. So there are many series are present. तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराते हैं तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है, और कुछ टाइम के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आता है, या तो वो सीधा ही हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे और भी एनर्जी स्टेट बीच में प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो रुक रुक के आता है, तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है फॉल आउट होती है और हमको यहाँ पे लाइन ऑफ सीरीज मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा तो कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 से 1 में ट्रांजिशन कैसे होगी। तो n जो हमारा होना चाहिए 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, एंड इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, क्योंकि जो 6 से लेके 1 तक आती हैं, जो n इज इक्वल टू 1 में आती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज n2 minus n1 plus 1 divided by 2. So from this rule we can find out the line of spectrums. Now the next significance is calculation of ionization energy. So what is ionization energy? Ionization energy is the energy which is provided to the electron. So this can be come out from the atom, and the atom is positive charge. अगर यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव आउट हो जाएगा, और जो एटम जो हमारा है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, अगर n इज इक्वल टू 1 है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और बाद में हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक अगर हम ले जाएं, तो उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, यहाँ पे Z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे Z हाइड्रोजन के लिए तो हमारा 1 ही होगा, तो Z, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा E1 क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये तो हमारी E1 की वैल्यू हो गई। तो जब हम इसको E इंफिनिटी में से माइनस करेंगे तो वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो हमारी E इनफाइनाइट कितनी होगी, अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करें तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट स्क्वायर इज इनफाइनाइट, एंड 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0। सो E इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आयनाइजेशन
करेंगे E इनफाइनाइट माइनस E0 दैट इज इक्वल्स टू E इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0 माइनस दैट इज माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल. So minus minus plus, so minus 2 that is 2.18 into 10 to power minus 18 जूल. So ये तो एनर्जी हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन एटम की. अगर हमको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए चाहिए तो क्या होगा? सो E इनफाइनाइट माइनस E0. सो यहाँ पे E इनफाइनाइट तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा Z, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो Z की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा Z, और यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है. सो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इनटू में Z. तो ये हो गई हमारी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. नाउ द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज number of revolution made by electron around nucleus. So number of revolution क्या होता है? number of revolution is equals to velocity of electron divided by circumference of orbit. सो वेलोसिटी कितनी होगी? v न्यू डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई r. और हमको r की वैल्यू पता है क्या होती है? r इज इक्वल टू m स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर z. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे r के अंदर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई, r की वैल्यू है n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर z. तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, v डिवाइडेड बाय 2 पाई n स्क्वेयर h स्क्वेयर इंटू में 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर z. तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा? is equals to nu, there is 2 pi nu m e square z divided by n square and h square. so ये हो जाएगा हमारा number of revolution. now the next significance is calculation of velocity of electron. So हम velocity कैसे निकालते हैं? velocity का फॉर्मूला है nh डिवाइडेड बाय 2 पाई mr, और r की वैल्यू हमको पता है यहाँ से n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर z. तो यहाँ से हम r की वैल्यू पुट आउट कर देंगे. सो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी nh डिवाइडेड बाय 2 पाई m n स्क्वेयर h स्क्वेयर, और ये डिवाइडेड में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर ही लिख देते हैं, 4 पाई स्क्वेयर m e स्क्वेयर z. सो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, h कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट. तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा? यहाँ पे 2 पाई m इज ऑल्सो कैंसिल आउट, m e स्क्वेयर z डिवाइडेड बाय n h. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी. और ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट,
इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, और Z फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 1 होगा, तो ये भी कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, V इज इक्वल टू, हम इसको अगर A0 मान ले इसको, क्योंकि Z भी 1 है यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, तो A0 डिवाइडेड बाय N। और जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.19 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय N। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी यहां से। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर N एटम के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10 टू पावर 6 Z डिवाइडेड बाय N। क्योंकि हम nth एटम के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पे जो Z की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Vn इज इक्वल टू V0 इंटू Z डिवाइडेड बाय N। एंड इसके अंदर जो V0 है वो क्या है, इट इज द एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिटल। So these are the significance. So now we move on to the limitations of Bohr's atomic model. So the first limitation is it does not explain the doublet. डबलेट क्या होता है, डबलेट स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत ही क्लोज होती हैं, तो उसको ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द एटम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन। सो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम का जो सिस्टम है उसी को बता पाया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जैसे कि हीलियम एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ द थर्ड इज, इसमें जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं, अगर उस सोर्स को हम रिप्लेस कर दे मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जो हमको ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, तो क्या होगा, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो अगर हम ये जो रेडिएशंस है इनको अगर रिप्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे जीमन इफेक्ट। एंड इफ द रेडिएशन ऑफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होगी उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। Fourth, it does not explain that atoms can form molecule with the using of chemical bond. So ये भी नहीं बता पाया था कि एटम जो है वो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं केमिकल बॉन्ड की हेल्प से। Now the next is, इसने बताया था कि जो एटम्स की जो शेप होती है वो फ्लैट होती है, बट अब हमको पता है 3 डायमेंशनल जो होती है एटम्स का जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। नाउ द 6 इज, कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है, बट जो बोहर्स है इसने ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। So these are some limitations of Bohr's atomic model. So that's for this video guys. So thank you so much for watching this video. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.